पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उजल जगति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये पीछे करो। अपना है दिल ये आज का दुनिया से जागो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो May I request Jaiprakash Sharma sir, Member Bar Council of India, to please join us on the stage. May I request our Vice Chairman Mr. Sanjeev Nasia to please join us on the dais. May I request my staff to request all the members who are sitting, they are standing outside the hall, please request them to please be seated, please. I request our ASG Chetan Sharma sir to please come on dais. May I request all the members who are sitting or standing outside to please come inside so that we can start our program. I welcome Mr. Neeraj ji. I welcome Mr. Anil Soni ji. I welcome Mr. Sandeep Sharma, Secretary Delhi High Court Bar Association. We have with us President Delhi High Court Bar Association, Mr. Mohit Mathur. I welcome you, sir. I welcome Mr. Sanjay Diwan, sir, who is also a member of Delhi High Court Bar Association. I welcome Rakesh Tikku, sir, our former chairman, former member, and as of now, he is a member executive senior, Delhi High Court Bar Association. I welcome Mr. Nagendra Pendipal, Joint Secretary. I welcome Ms. Vandana Grover, Lady Member Executive, Delhi High Court Bar Association. I welcome Amit Chadda, Treasurer, Delhi High Court Bar Association. I welcome Nitish Mehra, Dhanmohan, Gayatri Puri, and Nishant Anand, all the executive members of Delhi High Court Bar Association. Now I would like to welcome all the members of Bar Council of Delhi. I welcome our former chairman Murari Tiwari sir, member Bar Council of Delhi. I welcome Rakesh Kochia sir, member and former vice chairman Bar Council of Delhi. I welcome O.P. Faizi sir, one of the most veteran Bar Council member, former chairman. I welcome you sir. I welcome Lalit Bhasin sir, who happens to be a member of this council. So I welcome you sir. I welcome Mr. Himal Akhtar sir, former vice chairman, member Bar Council of Delhi. I welcome my colleague Mr. Kumar Mukesh, former honorary secretary Bar Council of Delhi. I welcome you sir. I welcome Mr. D.K. Sharma, co-chairman Bar Council of Delhi and member Bar Council. I welcome our former member Bar Council and former honorary secretary Puneet Mittal sir. I welcome Mr. Piyush Gupta, former honorary secretary, member Bar Council of Delhi. I welcome our two former stalwarts, former chairmen, Mr. R.S. Goswami sir, and I welcome Mr. Rakesh Arawat sir, former chairman, member Bar Council of Delhi. I welcome Rajpal Kasana sir, former co-chairman I think and member Bar Council.
I welcome all the members who are present in this auditorium. इस सभागार में जितने भी हमारे अधिवक्तागण, जितने हमारे दोस्त सीनियर मेंबर्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो उसके लिए मैं अभी से एडवांस में आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑल स्टाफ से जो भी बाहर हैं उनको बुला लो, अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत कर सकें। सबसे पहले आप सभी का इस बार काउंसिल दिल्ली के सभागार में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे भी इस काल को अमृत काल का नाम दे रखा है, तो इस अमृत काल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव। उस परंपरा को निभाते हुए आई वेलकम केसी मित्तल सर, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली। हमारे बीच में कुछ स्टैंडिंग काउंसिल भी है। आई वेलकम रिपुदमन भारद्वाज सर, स्टैंडिंग काउंसिल दिल्ली हाई कोर्ट। आई वेलकम अनिल सोनी सर, प्रभारी दिल्ली बीजेपी एंड स्टैंडिंग काउंसिल। आई वेलकम नीरज जी इन दिस ऑडिटोरियम। जैसा कि मैंने कहा अतिथि देवो भव, उस परंपरा को निभाते हुए आई रिक्वेस्ट आवर कुमार मुकेश जी एंड पीयूष गुप्ता जी, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लीज वेलकम Justice Subramaniam Prasad sir by handing over pot and shawl. Now I request R.S. Goswami sir, Rakesh Rawat sir, please come forward and welcome our another chief guest of honor, Honorable Mr. Jasdeep Vikas Mahajan, by giving him a flower pot as well as a shawl. Don't worry, Mr. Chadda, soon BCD will carve flowers. Not चाहिए चड्डा साहब, इंतजार है ना दिल्ली हाईकोर्ट बार के। May I request Himal Akhtar sir and Rakesh Kochar sir, please come forward and welcome our ASG sir, Chetan Sharma sir. Rana. Now may I request Rajpal Kasana sir and Murari sir to please come forward and please welcome our member Bar Council of India, Mr. Ved Prakash Sharma sir. May I request, as Honorable Chairman sir said, he doesn't want any welcome further. So, following his directions, so may I request our DK Sharma sir, please welcome our dynamic President Delhi High Court Bar Association, my mentor, my elder brother, Mr. Mohit Mathur. Please welcome him.
I welcome his extended family too. Sorry, I am doing rectification young. Sir, it is our pleasure always. राणा फोटो ले लेने जरा। I am requesting myself to welcome Lalit Bhasin sir. राणा I request Kumar Mukesh sir, please come and welcome our veteran Bar Council member, former chairman Bar Council Delhi, OP Ferry sir, please. राणा वहीं खड़ा रहे। अरे हेलो, एक जगह रहे यार। ले ले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने वाइस चेयरमैन संजीव रसिया सर से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आए और इस सभागार में जो भी उपस्थित हमारे अधिवक्ता गण हैं उनको संबोधित करें। प्लीज़ संजीव रसिया सर। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज बार काउंसिल दिल्ली भवन में आए सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष तौर पे हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस प्रसाद जी, ऑनरेबल जस्टिस विकास महाजन जी विशेष हमारे निवेदन पे हमारे बीच में हैं। आज झंडा धोरण किया, आपके हाथों से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत सर। मेरे ऑनरेबल चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री जी, जिनके आने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ बार काउंसिल दिल्ली काम कर रही है, और गाइडेंस वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनको बहुत लंबा बार का एक्सपीरियंस है, लीडरशिप का तजर्बा है। ऐसे वेद प्रकाश शर्मा जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन से के तौर पे आपके गाइडेंस हमेशा हम लोगों को मिलती रहती है। आप आज के कार्यक्रम में आए, आपका अभिनंदन। हमारे बीच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा जी, जो कि हमारी ट्रस्टी कमेटी के चेयरमैन भी हैं। बहुत लंबे टाइम तक ट्रस्टी कमेटी काम नहीं कर पा रही थी। चेतन शर्मा जी के आने के बाद उनकी 2-3 मीटिंग हो चुकी है, तो बहुत नीडी लॉयर्स को उस टाइम पे फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे चेतन शर्मा जी का भी अभिनंदन। हमारे बीच में बहुत सारे बार एसोसिएशंस के, बार काउंसिल्स के लीडर बीच में बैठे हैं। भसीन साहब से आज बहुत लंबे टाइम के बाद मिलने का मौका मिला। 1973 से 1977 तक आप बार काउंसिल दिल्ली के चेयरमैन रहे। आप धर्मपत्नी के साथ आए सर, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। हमारे सबके प्रिय मोहित माथुर जी, बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के तो प्रेसिडेंट हैं ही, उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के लीडर्स में
या मेंबर्स में जितने मोहित माथुर पॉपुलर हैं इतने शायद उसके मैच में दूसरा कोई पॉपुलर प्लेयर नहीं है। आप पूरी टीम के साथ पधारे हैं, संदीप जी सारी टीम आपके साथ आई, तो आपका भी अभिनंदन। आज बहुत खुशी का दिन है और एक ऐसा उत्सव जो कि नेशनल फेस्टिवल के रूप में पूरे वर्ल्ड में मैं मानता हूं कि इंडियंस मनाते हैं। और आज मैं देश के प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुन रहा था, जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च पे, एजुकेशन पे बहुत लंबी लंबी बातें रखी पहली बार। तो आज मैं एक एडिटोरियल सुबह सुबह पढ़ रहा था, उसमें हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी उसके बारे में बताया। मैं सिर्फ 2 मिनट में वो रखूँगा। ईस्वी सन 1 से 17वीं शताब्दी तक हमारे देश की स्थिति पूरे वर्ल्ड में 37% एसेट जो है वो पूरे वर्ल्ड की हिंदुस्तान में मानी जाती थी, इसीलिए सोने की चिड़िया कही जाती थी। और उस टाइम पे करेंसी के तौर पे चांदी और सोने से सब लेन देन होता था। तो ऐसी स्थिति हमारे देश की रही। और उसके बाद 15वीं सदी से और 18वीं सदी तक टोटल वर्ल्ड की 25%, 1/4 जो बिजनेस था उसको हम लोग कंट्रोल करते थे। तो देश की स्थिति वर्ल्ड में इतनी मजबूत थी, एजुकेशन में हम लोग बहुत एडवांस थे, फाइनेंशियल स्थिति हमारे देश की बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हमारे लीडर्स या हमारे जो देश के बड़े नेता रहे होंगे या राजा महाराजा रहे होंगे उनसे चूक रही होगी कि देश की स्थिति बीच में बहुत गड़बड़ाई। लेकिन दोबारा हम लोगों को एक उम्मीद है कि देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। और विकसित राष्ट्र बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र मैं ये मानता हूँ हमारा यूनिटी, भाईचारा, हमारे देश की जो संस्कृति है उसके साथ अगर हम इकट्ठा होकर मुट्ठी होकर आगे बढ़ेंगे तभी देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और कोई भी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उसके यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ, इन दो पे बहुत बड़े लेवल पे, सरकार लेवल पे या समाज लेवल पे काम होने चाहिए। मेरे को ये याद है, मैं गांव से आता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ कि गांव में एजुकेशन की कमी होने के बावजूद हमारे बुजुर्गों ने सबने इकट्ठा होकर संस्थाएं बनाई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। उन संस्थाओं के माध्यम से स्कूल और कॉलेजेस काम करते थे, हॉस्पिटल्स काम करते थे। लेकिन वो अब ख़त्म हो गई और आज के दिन हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेजेस ये एक बिजनेस बन गया है। मैं मानता हूँ इससे परहेज करना पड़ेगा और देश को मिलके एक विकसित राष्ट्र बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हम लोगों का जो लीगल प्रोफेशन है ये तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में सबसे बुलंदी पे है। जिस तरीके से लीगल प्रोफेशन में हम लोगों के एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से हमारे नए साथी आने लग गए हैं और मेरे को वो दिन दूर नज़र नहीं आता है कि लीगल प्रोफेशन पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से नंबर 1 है इसी तरीके से हमारे देश में भी नंबर 1 होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में कुछ अभी गेस्ट आए हैं। आई वेलकम मिस्टर धनंजय कुमार सिंह, सेक्रेटरी DRT बार। आई वेलकम यू। हमारे बीच में अतुल शर्मा, सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे मेंबर फॉर्मर सेक्रेटरी विष्णु शर्मा आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब मैं हमारे मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली सूर्यप्रकाश खत्री सर को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आए एंड एड्रेस। भाई भरत मिलान खत्म हो गया हो तो आ जाओ। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विकास महाजन, मेरे बड़े भाई जो जिनसे मैं हमेशा जो मुझे गाइडेंस भी मिलती है और मेरा एक आत्मविश्वास के अंदर हमेशा बढ़ोतरी होती है, ऐसे मेरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरे दूसरे जिसको कि ऐसा देख के लगता है कि प्रोफेशन में होना नहीं चाहिए और पता नहीं कैसे स्टैंडिंग, अब कहते हैं कि इस समय सरकार की तरफ से काफ़ी विपक्ष की ऐसी की तैसी की हुई है इन्होंने, ऐसे हमारे चेतन शर्मा जी जो कि बहुत ही एक मेरी नज़रों में ये एक शेर है
और ये शेर कहने के लिए नहीं है, बातों से भी है और दिल से भी है। और हमारे संजीव नसियार जी वाइस प्रेसिडेंट, मेरा अनुज जिसके भरोसे मैं बार काउंसिल को आंख बंद करके चला जाता हूं छोड़कर, ऐसे राजेश मिश्रा जी, और मेरे सभी मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जितने भी मेंबरान्स हैं, मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इतना प्यार और स्नेह और इस तरीके का गठबंधन, इतनी यूनिटी मेरी बार काउंसिल में मैंने पिछले 28 साल में नहीं देखी, जितनी यूनिटी मेरे बार काउंसिल में इसमें। हमारे बीच में मेरा अनुज, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में तो नहीं, पूरी दिल्ली में ही बहुत पॉपुलर है, सही कहा संजीव नसियार ने, जो कि वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे मोहित माथुर। और आज सबसे अच्छी आश्चर्यजनक चीज़ ये रही कि जिसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, अचानक हमारे बीच में हमारे ललित भसीन जी, जो दिल्ली बार काउंसिल के 4 बार के हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने आके आज हमें बहुत एक तोहफा दिया है अपनी उपस्थिति का, और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे को, मैं हमेशा कहता हूँ कि बार काउंसिल में कोई ना कोई एक बड़ी शख्सियत हमेशा रहती है जिसकी गाइडेंस हमेशा मिलती रहती है। ऐसी गाइडेंस हमारे को बार काउंसिल के अंदर बड़े ठंडे दिल और ठंडे दिमाग से हमेशा मेरे पास रही, ऐसे अपने ओपी फैजी जी, जो कि हमेशा करते हैं। और जब मैं सेक्रेटरी बार काउंसिल दिल्ली 2000 में बना था, तो मुझे जो आज जो जिम्मेवारी राजेश मिश्रा के पास है, लेकिन जो मुझे उस समय अनुभव और जो मुझे कार्य करने का एक मौका मिला और जिनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसे हमारे केसी मित्तल जी, जो उस समय भी चेयरमैन थे, बाद में भी चेयरमैन रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। मेरे बीच में 30 जारी के सेक्रेटरी अतुल शर्मा जी भी हैं, टैक्स के बार के प्रेसिडेंट चमन जी भी हैं, और एक मेरे बीच में एक ऐसा शख्सियत भी आई हुई है जो मुझे कॉलेज में तो डराता था, मुझे आज भी लगता है यहाँ डराने आया हुआ है, ऐसा अमित कपूर, जो कि मेरा बचपन का और कॉलेज का साथी है। उसको भी देख के मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मुझे उससे बचने के लिए हमेशा सरिता का सहारा लेना पड़ता है, वो भी साथ आई हैं। तो यहाँ पर जितने भी महानुभाव यहाँ पर हैं, नाम लूँगा, किसी का छूट जाएगा, किसी का रह जाएगा, लेकिन सभी को मैं, सभी मेरे लिए बहुत ही आदरणीय और बहुत ही प्रिय हैं। मैं इस गणतंत्र दिवस पे 78वें 77 दिवस पे, वो गणतंत्र इसलिए याद आ रहा है कि आज एक डिसीजन ये लिया है कि गणतंत्र दिवस के ऊपर हम लोगों ने ये तय किया है कि हम पूरे बार काउंसिल के स्टाफ और उनकी फैमिली का स्वागत करेंगे। उस दिन कोई नहीं होगा, सिर्फ हमारा स्टाफ होगा और उनकी फैमिली होगी, और उसके लिए हम स्वागत करेंगे। इसलिए गणतंत्र दिवस सुबह से 4-5 बार डिस्कस हो चुका था, तो वो अभी चल ही रहा है, तो अब मैं समझता हूँ कि इससे बाहर आ जाता हूँ। तो गणतंत्र दिवस पर आज आप सब लोग यहाँ आए। एक अच्छी चीज़ यहाँ ऐसी हुई है कि आज कुछ महानुभूतियाँ जो हैं, जो पहली बार ही आई, क्योंकि हमारे 15 अगस्त के फंक्शन में पहली बारी जस्टिस हाई कोर्ट्स के आए हैं, और मेरे को आज दिल्ली में नहीं रहना था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि अब इससे आपको पता लगता होगा कि चेयरमैन ही डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन सेक्रेटरी भी ले लेता, तो ये यहाँ पावर्स, हमारी पावर जो है वो सबके पास है, और जिसने ले लिया जो डिसीजन, उसको फिर सब आगे ही बढ़ाते हैं। इन्होंने ये डिसीजन लिया और उसके बाद मुझसे कहा दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, और उसके बाद मैंने कहा भी जाना तो है ही। तो अब मैंने आज कोई भाषण नहीं, बहुत हो गए भाषण, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, और मुझे तो 20-25 साल हो गए भाषण देते हुए, तो मुझे बातें करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कहा गया कि आप नहीं जाएंगे,
अब ये भी कहा कि अब माई लॉर्ड आ रहे हैं और हम नहीं होंगे, तो हमने कहा भाई ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम आपके लिए जहाज करा देंगे। तो सेक्रेटरी ने क्या किया, चुपचाप से बोला जी आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे फलानी जगह जाना है। इसने चुपचाप से मेरी जहाज की टिकट करा दी, कहने लगे जी उस समय आप पहुंच जाओगे या आप अपनी टिकट ले लो, पर आपने आना है। ये बहुत अनुज मेरा इतना अच्छा सेक्रेटरी है और हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। प्रसाद जी और मैं महाजन साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर पूरी जुडिशरी जिस तरीके से आज बार काउंसिल एकजुट होकर काम करती है, और हम लोग एक और बात बता देते हैं कि अब हम न्याय का भी हमारा जो अपना काम करने का तरीका है उसमें काफ़ी सख्ती है, और हम लोग ये तय कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर लिबर्टी बिल्कुल नहीं देनी। हमारे मापदंड बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग इसलिए लेते थे, इस बात को समझते थे कि वो बार काउंसिल में कंप्लेंट भी चली जाएगी, कोई नहीं मेरे मेंबर बार काउंसिल बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, आज बार काउंसिल में बहुत सख्ती है। हम इवन चाहे हमारा स्टाफ हो, हम आपस में भी अगर कोई चीज़ हमें लगता है कि हम सहमत नहीं हैं तो हम कह देते हैं, तो दूसरा बार काउंसिल का मेंबर बुरा नहीं मानता है। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, जो देश तो आज़ाद हो गया लेकिन आज़ादी सही मायने में नहीं हो पाई है। वो इसलिए नहीं हो पाई, वो मेरे साल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है। शुरू करूं तो आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी का जो सही मायने में जो उसका उत्सव होना चाहिए था वो कभी कभी बीच में फीका पड़ जाता है। देश में जिस दिन लोग, इस देश के लोग जिस दिन देश के लिए जीना शुरू कर देंगे उस दिन देश सही मायने में आज़ाद होगा। दिक्कत यह है कि लोग अपने लिए जीते हैं, देश के लिए नहीं जीते। दैट इज मेरा बस यही एक संदेश है कि जिस दिन हम लोग अपना स्वार्थ छोड़कर देश के लिए सोचेंगे। मैं अभी पीछे एक ट्रिप गया, उसमें काफी जजेस भी थे, तब मैंने ये कहा था कि थाईलैंड में और हिंदुस्तान में क्या फर्क है। थाईलैंड में और हिंदुस्तान में फर्क, वहां के लोगों ने अपना शरीर बेच के अपने देश को बना दिया, और यहां हमारे देश में लोग देश को बेचकर अपने परिवार को बनाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो जिस दिन हम लोगों ने देश को प्रायोरिटी पे रखा, जिस दिन हम लोगों ने संविधान को प्रायोरिटी पे रखा, जिस दिन हमने अपने माँ बाप को प्रायोरिटी पे रखा, इस देश से बड़ा देश संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे बीच में अनिल जी भी आए हुए हैं, अनिल सोनी जी, और नीरज भी आए हुए हैं। अनिल सोनी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट थे। हमारे बीच में एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कवि हैं, वो अपनी बात रखेंगे अभी। परवीन शुक्ल जी, इनको मैंने अभी सुना था, अभी 2 दिन पहले टैक्स बार में मैं गया था, तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने कहा 2 पंक्तियाँ एक दिन हमारे 15 अगस्त पर आप जरूर कहना। तो मैं अनिल सोनी की एक बात बता रहा था कि जब अनिल सोनी दिल्ली विश्वविद्यालय का इलेक्शन लड़ा तो इनके साथ हर बैच में 1-2 लड़कियां भी लड़ती हैं। हमें लड़कियों को तो फ्री रखना पड़ता था, पर इनकी देखभाल करनी पड़ती थी। इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, उस समय कैंडिडेट थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो इनको ये बचा के रखना पड़ता था, कोई इनको लड़की ना उठा के ले जाए। तो ऐसे अनिल जी आज हमारे बीच में हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे आए, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार, और आज़ादी की ये शुभ घड़ी और आने वाले दिन आपके लिए शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। हमारे बीच में श्री हरि बोरकर जी आए हैं। मैं बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, हरि बोरकर जी का।
हमारे बीच में चिमनलाल गुप्ता जी, सॉरी आपका मैं नाम नहीं ले पाया, आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे फॉर्मर चेयरमैन BCI मेंबर वेद प्रकाश शर्मा जी से आएँ और संबोधित करें सर। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी, जस्टिस विकास महाजन, ASG चेतन शर्मा जी, चेतन शेर जी, सूर्या जी के मुताबिक, वाइस चेयरमैन संजीव नसियार, सेक्रेटरी राजेश मिश्रा, हमारे बार काउंसिल दिल्ली के सीनियर मोस्ट मेंबर्स OP फैजी और KC मित्तल जी और बाकी बार काउंसिल के समस्त मेंबर हमारे बीच में श्री मोहित माथुर, प्रेसिडेंट दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, और ललित भसीन जी और नीना भसीन जी, उनका मैं उल्लेख विशेष रूप से करना चाहता हूँ। ललित भसीन जी 1975 में दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन थे। मेरा जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ललित भसीन जी के दस्तखत हैं 25 सितंबर 1975। और हमारे स्टैंडिंग काउंसिल्स आए हुए हैं, रिपु भारद्वाज, अनिल सोनी और बाकी बार के जो एग्जेक्टिव मेंबर्स के सदस्य हैं दिल्ली हाई कोर्ट बार के, और सभी बार के लीडरान, हमारी बार काउंसिल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सेक्रेटरी हैं, देवी और सज्जनों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। And we remember and the martyrs, those who sacrificed their lives to win freedom for us. My dear friends, it's a day for rejoicing, for celebrating, for making festivities and celebrating Independence Day, and for obvious reasons, because so many sacrifices were made by the martyrs, the freedom fighters, for securing this day for us. But at the same time, we will have to think about that they had done their role, all the martyrs and freedom fighters. Now after that, what we are doing? Are we doing our duty? The duty which was expected of us by those who built this nation. It's a very serious thing which we need to ponder about, and we need to at least जिसको कहते हैं कि आत्ममंथन जिस पे करना चाहिए, और हमें देखना पड़ेगा कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जो अपेक्षित जिस रूप में लोग हमसे सोचते थे हम वो कर पा रहे हैं। हमारे राजनेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बिजनेसमैन, दूसरे जो सेक्टर्स से संबंधित लोग हैं, आर दे डूइंग देयर ड्यूटीज़ परफेक्टली। हम आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, जजेस हैं, वकील हैं, क्या हम अपना काम ठीक कर रहे हैं? ये एक सोचने की बात है बहुत गंभीरता से। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार हज़ारों करोड़ रुपया खर्चती है अदालतों के लिए, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिस्टम से ये किसके लिए खर्चती है? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पब्लिक के लिए। वो क्या हम कर पा रहे हैं? आर वी एबल टू मेंटेन द फेथ ऑफ द पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? ये हमें सोचना पड़ेगा सब दोनों को। बार एंड बेंच, दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। हम दोनों की जिम्मेवारी है। वकील अपना दायित्व तो पूरा कर पा रहे हैं या जजेस अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये समय आ गया है सोचने का। ये पीछे जो सर्कमस्टांसिस बड़ी सारी चीज़ें हुए, उसके बाद हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कई बार सोचता था कहूँगा, लेकिन कह नहीं पाया। एक छोटी सी बात मैं आज उल्लेख करना चाहता हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रोफेशनल एडवोकेट्स के लिए बनाया है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एटिकेट्स। मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी साहब से, जब आप एनरोलमेंट करते हैं, पहले भी मैंने ये प्रार्थना कई बार करी है, मैं खुद यहाँ चेयरमैन था बार काउंसिल का, मैं करता था ये काम, कि उसकी एक कॉपी जितने भी एनरोल होते हैं एडवोकेट्स, नए बच्चे, उनको दी जाए, सो दैट दे नो हाउ टू बिहेव एंड कंडक्ट देमसेल्व्स वंस दे आर इनटू द बार। ये बहुत जिम्मेवारी वाला एरिया है जो हमने ज्वाइन किया है। अभी पीछे एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का मई में, तो जो मई में 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एडवोकेट्स आर नॉट कवर्ड
within the definition of service as provided in Consumer Protection Act। ये हमारे लिए खाली एक सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है, हमारे लिए ये सोचने की बात नहीं लो जी बड़ा अच्छा हो गया हम उस एक्ट से बच गए। ये हमारे कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेवारी डालता है ये जजमेंट। आप इस जजमेंट को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि वकील जो है दे बिलोंग टू ए नोबल क्लास। उनका क्या क्या काम है, वो सोसाइटी के दे आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। उनकी इतनी जिम्मेवारी है, इसलिए उनको अलग करा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। वी आर ए डिस्टिंक्ट section of the society and we are far ahead than other professions in the country। तो हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। और प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में एक छोटी सी बात आपसे मैं कह रहा हूँ, जितने मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं और जो जज साहिबान आज यहाँ पे बैठे हैं, ये सब रोजाना देखते हैं। क्या देखते हैं? हम कोर्ट्स में जाते हैं, जूनियर एडवोकेट्स इंटर्न्स कुर्सी पे बैठे रहते हैं, सीनियर्स को कोई कुर्सी ऑफर नहीं करता। आपने नोट करा हुआ, रोज करते हैं, मैं भी करता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, शर्मा के बाहर आके खड़े हो जाते हैं कि भाई जब नंबर आएगा जब ही पेश होंगे। ये समस्या मैंने 1985 में भी उठाई थी। पी.के. बारी साहब जो बाद में हाईकोर्ट के जज बने, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, मैं सेक्रेटरी था दिल्ली बार एसोसिएशन में 1984-85 में। उनसे मैंने ये समस्या भी हमेशा रही है ये प्रॉब्लम। तो बारी साहब ने चल के देखा कि भाई ये तो वाकई में प्रॉब्लम हो गया। अपने जजेस जुडिशियल ऑफिसर्स को कहा कि आप अपने ऑर्डरली को बोलिए कि अगर आप ये देखते हैं कि कोई जूनियर वकील बैठे हैं कुर्सी पे और सीनियर खड़े हुए हैं, तो उनसे प्रार्थना करें कि आप सीनियर के लिए सीट ऑफर करें। ये छोटी सी एक बात मैंने आपको प्रोफेशनल कंडक्ट की बताई। ये सब है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में, सब जो जानकार हैं यहाँ पे जानते होंगे। तो मैं आज ये ठीक मैंने मौका देखा, आप सब लोग यहाँ पर हाजिर हैं, जज साहिबान भी हैं, इस चीज़ को आप कैसे एनफोर्स करें, बिकॉज सीनियर्स का रेस्पेक्ट सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आज बिना मेंटर के कोई जूनियर जो है अच्छा वकील नहीं बन सकता, ये हम सब लोग जानते हैं। आपको मेंटर्स चाहिए इस प्रोफेशन में, आपको नॉलेज शेयर करने वाले लोगों की ज़रूरत है, जब भी आप अच्छे प्रोफेशनल बन पाएंगे। तो जूनियर्स की ड्यूटी है सीनियर्स के रेस्पेक्ट करें, सीनियर्स की ड्यूटी है जूनियर्स के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, उनको सिखाएं, समझाएं। ये प्रैक्टिस हमेशा इस प्रोफेशन में रही है, आगे भी रहनी चाहिएगी। मैं दोस्तों, मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक फंक्शन में जाना है, टाइम निश्चित है, आज वहाँ कोई PCI का मेंबर नहीं है, मुझे जाके ये सारी कार्रवाई वहाँ भी करनी है। मैं क्षमा मांगता हूँ अपने अतिथियों से, मैं रुक नहीं पाऊँगा, तो आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ मैं गुजारिश करूँगा चेतन शर्मा सर से प्लीज़ कि आएँ और हमें अपना आशीर्वाद दें। चेतन सर। आप सभी को भारत की स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। इस राष्ट्रीय पर्व पर हमारा देश विकसित भारत की ओर अग्रसर हो, ऐसी शुभेच्छा, ऐसी कामना, और साथ में जो इस समय वैश्विक स्तर पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे पड़ोस में जो आपने देखा, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, ये एक प्रकार का जो पैटर्न है, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ये इस पुण्य भूमि पर दूर दूर तक ना आए। हम और आप अपनी इस सभ्यता में, इस संस्कृति में, इस भारतवर्ष की चेतना में हम संरक्षित रहें, संवर्धित रहें, ऐसी आज मेरी प्रार्थना है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि नेशन फर्स्ट, हमारी सारी बातें गौण हो जाती हैं, केवल एक कि हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा भाईचारा, ये एक अखंड रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आज कामना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये पुण्य देश है, ये वो देश है जहाँ देवी देवता अवतरित होते हैं और किसी देश में नहीं होते। ये वही देश है जहाँ इतनी ऋतुएं होती हैं,
यहाँ वही देश है जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ वही देश है जहाँ गंगा बहती है, जमुना बहती है। ये वही देश है जहाँ स्वयं देव आकर अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं। ये वही देश है जहाँ श्रीमद् भगवत गीता उच्चारी जाती है, भगवान के मुख से उच्चारी जाती है, और कोई देश ऐसा नहीं है। अगर यहाँ की संस्कृति आघातित हो गई, अगर यहाँ का संस्कार आघातित हो गया, तो इस भूमंडल पर बहुत बड़ा आघात होगा। उसके बाद मेरा विचार नहीं है कि ये देखिए, खाना पीना और बाकी क्रियाएं करना, ये तो जानवर भी कर सकते हैं, ये करते हैं। जो मनुष्य देह है, जो मानव धर्म है, अगर उसकी प्रतीति, अगर उसकी मुख्य धारा कहीं है, तो वो इस राष्ट्र में है, जिसको खत्री साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, विश्व गुरु यहीं से शुरू होता है। तो आप देखिए कि आप कितनी रिच संस्कृति से आपका संबंध है। हमें वो याद रखना कि व्हाट आर आवर रूट्स, लेकिन उसके साथ साथ हमें आज और कल के लिए भी सोचना होगा। सो आई विल नॉट से मोर, because Justice Prashad has to make his major speech today. Though he said that he said you deputize for me. I said speaking is not a problem, sir, but you will have to speak. Justice Mahajan, Justice Prashad, Gulshan Sahab, Faizi Sahab, Nisar Sahab, Bhasin Sahab, जितने यहाँ हैं, टेक इट कि मैं सबका नाम ले रहा हूँ। नीरज जी भी आए हैं, सोनी साहब, रिपु जी, और मैं पीछे देख रहा हूँ हमारे श्री हरि बोरीकर जी भी आए हैं। बट देयर इज वन मैन हु कैन नॉट बी मिस्ड। he has defied age and he loves to be called a young man, and we love to call him a young president of the Delhi High Court Bar Association, Mr. Mohit Mathur. And kindly see the gesture when he was called, he said, "नहीं, मेरी सारी टीम आएगी." This shows कि एक वकालत में we may have our differences, लेकिन हमें एक वो था कि इसकी ग्रेस है कि आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट पीपल वुड गो टू द कैंटीन एंड हैव अ कॉफी। मैं चाहता हूं कि ये ग्रेस जो है ये वापस आए। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हुई है। We advance the cause of justice, that's just about it. We do our matter, that's just about it. उसके आगे केस को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने घर में और अपने जहन में ले जाना वो ठीक नहीं है। It should be left at where it is. That's the point. और आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उद्बोधन किया है। जो उनके बिंदु हैं वो आपके सामने हैं, आप भी उन पर विचार करें। फर्स्ट एंड लास्ट, नेशन फर्स्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद चेतन सर। Now I would like to request Honorable Mr. Justice Vikas Mahajan sir, please come and address us. सर्वप्रथम आप सबको 71वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे केवल ये बता के बुलाया गया था कि आपको सिर्फ ध्वजारोहण करना है, बोलने की तो बात ही नहीं हुई थी। और हमें तो ये पढ़ाया गया था कि जज ओनली स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट्स। ऐसा जज को बोलने का मौका कम ही मिलता है। पहले 4:30 बजे तक कोर्ट में बैठो, सुनो, फिर शाम को घर जाओ और फिर सुनो। मेरे सीनियर, मेरा सौभाग्य है और आई एम फॉर्चुनेट दैट माय सीनियर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद इज हियर, सो दैट हैज़ मेड माय टास्क इजी। सो इन एडवांस आई से whatever he'll say, I agree. मुझे लगता है कि आज तो अमित महाजन जी ने मुशायरा ही लूट लिया।
विकास महाजन जी ने पूरा का पूरा मुशायरा ही लूट लिया। हम तो बेकार के लोग हैं, अब हमें कुछ सीखना पड़ेगा। Before I call Prasad sir, I would like to welcome हमारे बीच में मिस्टर जगदीप वर्स, प्रेसिडेंट पटियाला हाउस बार एंड चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे मेंबर बार काउंसिल मिस्टर अजेंद्र सांगवान, फॉर्मर ऑनरी सेक्रेटरी बार काउंसिल दिल्ली, उनका स्वागत करता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जस्टिस as chairman directed, I request our dynamic and young president Delhi High Court Bar Association to please come and address. Direction of chairman की I can't define. नहीं भेजेंगे यहाँ पर होती रहेगी यहाँ पे 1 घंटा हो गया Please तालियों से हमारे प्रेसिडेंट साहब का स्वागत करें। मुझे लग रहा है कि चेयरमैन साहब ने सिर्फ बदला लिया है, क्योंकि मेरी टीम की तरफ उंगली करते हुए उन्होंने कहा था शायद वहाँ कुछ अच्छा चल रहा है। मैं उन्हें ये रिमाइंड कर दूं कि ये वो टीम है जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। Since I have been called to get even, and even on the few steps that I took, when one of the judges had already signed the judgment, the senior judge says this is an effort to get even, तो शायद मेरे को आर्ग्यूमेंट्स दोबारा से रिवाइव करनी पड़ेंगी सारी। बट आई एम श्योर जो हलचल हमारे खेमे में चल रही थी वो सबके दिलों में भी चल रही है कि बहुत देर हो गई, बहुत देर से भाषण चल रहे हैं। मैं रोक नहीं पाया था बार काउंसिल वालों को। अपने यहाँ के फंक्शन पे तो मैं फिर भी कंट्रोल कर लेता हूँ, यहाँ का चेयरमैन ही कंट्रोल करेंगे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, एंड व्हाट आई सेड yesterday, probably the sentiments have been echoed by the chairman here, that nation first. So I had spoken yesterday that bar has always been instrumental in first helping this country get independent, then in building this country and conserving and preserving our freedom. So today, in the presence of the honorable judges, I repeat, we need to be independent, irrespective of which bar it is, which member it is. He has to be freed of all pressures, coercions, thrusting. So please let us be free. Don't come in our way of our freedom. Thank you, and that's the only thing I want to say. Thank you, Mohit sir. Now I would like to request Honorable Mr. Justice Subramanian Prasad sir to please come and guide us. Please तालियों से स्वागत करें सर। My brother Justice Vikas Mahajan, my CA from college, Sud Prakash Khatri, Chairman Bar Council of Delhi, Mr. Faizi, Mr. Chetan Sharma, the ASG, my friend Sanjeev Nasir, the young and dynamic President of the Delhi High Court Bar Association, Mohit, along with the entire team, the other members of the Bar Council of Delhi, friends, thank you very much for inviting myself and Vikas for this function. I was told this is the first occasion that the judges have been invited for this function. I first wish all of you a very happy 78th Independence Day. The Bar Council of Delhi has done tremendous work for the betterment of the bar. And being a proud member of the Delhi High Court, the Delhi Bar Council, I can say that we have one of the best bars in the country. Our members are fearless inside the court, and as Mohit said, no shackles. But there's one thing very beautiful about this bar. It's put it across its views, but in a very disciplined way.
And that's the hallmark of our bar. We are fearless, but we are within our bounds. We are now in the Amrit Kal of the 75th year, an era of abundant opportunities. I encourage all the younger members of the bar to grab every opportunity available to them with both their hands. To be fearless in their address to court, to be honest to the profession, to be honest to their clients, and to ensure that the name of our bar council goes higher and higher. I would only say this, that we have to work towards the betterment of our country, and a strong bar always reflects a strong independent country. I need not remind you that most of our freedom fighters have been good lawyers, and they've always worked towards freedom. So wishing everybody all the best. Jai Hind. थैंक यू सर। मैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए हमारे बीच में हमारे दो कवि आए हुए हैं, प्रवीण शुक्ल जी, हमारे चेयरमैन साहब को भी फ्लाइट लेना है और हमारे गेस्ट को भी थोड़ा तैयारी हरी, तो आई वुड बिना टाइम वेस्ट किए आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रवीण शुक्ल जी ऑन द स्टेज टू प्लीज कम एंड गाइड अस थ्रू देयर पोएट्स। तालियों से स्वागत करें हमारे कवि का। कहते हैं ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो प्लीज़ आइए प्रवीण शुक्ल जी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अनंत शुभकामनाएं देता हूं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद जी, विकास महाजन जी, बहुत ही विटी कर्मठ आपके चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री जी, सेक्रेटरी साहब राजेश मिश्रा जी और चेतन जी ने तो आज जिस ढंग से अपना उद्बोधन दिया है, मैं तो सामने बैठा बैठा सुन रहा था। हिंदी के बड़े बड़े विद्वान भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते जिस तरह की भाषा और भावों का उन्होंने प्रयोग किया। उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संजीव नसिया सर, वेद प्रकाश जी और मेरे बहुत आत्मीय एम.के. गांधी साहब की उपस्थिति है। अब मेरा संकट आज थोड़ा सा ये है कि कवि हास्य व्यंग का हूँ मैं और वातावरण अतिरिक्त गंभीर है आज। बीच में थोड़ा सा खत्री साहब ने आनंद लिया और वो आनंद में समझ गया कि आनंद वाला आदमी हर जगह से आनंद ढूंढ लेता है। उनके मुंह से गणतंत्र दिवस निकल गया तो किसी ने कहा नहीं जी स्वतंत्रता दिवस है, तो उन्होंने बात को संभाला कि वो दरअसल सुबह से गणतंत्र का चल रहा था इसलिए गणतंत्र हो गया, बाकी बात तो स्वतंत्रता दिवस की ही है, क्योंकि अनुभवी आदमी स्थिति संभालना जानता है। वो हमारे यहाँ एक मुशायरा चल रहा था और खत्री साहब एक शायर ने शायरी शुरू की। पहली पंक्ति सुनाई उन्होंने और बोले कि जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक। और मोहित सर वो दूसरी पंक्ति भूल गए, तो उन्होंने हार नहीं मानी। एक तरफ से पहली पंक्ति दोहराई और दूसरी तरफ से सोचा दूसरी क्या है। खत्री साहब की तरह फार्मूला निकाला उन्होंने, बोले जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक। दोस्तों, पीछे वाले दोस्तों, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक। भाई साहब, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक। तो पीछे से एक श्रोता बोला, रे ये तो बता क्या है? कवि बोला हवा ही हवा है। तो तालियां बजा दीजिएगा, आज तो ये खत्री साहब की हवा ही हवा है। हरियाणा का आदमी सारे काम करता है तरीके से। हरियाणा के है ना वो अक्षर आधा बोलेगा, सुरेंद्र मतलब पूरा ने भी पूरा ही बोला जाएगा, पर काम पूरा परफेक्ट करता। वो हमारे यहाँ हरियाणा में पिछले दिनों एक दंगल हुआ
पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए मुझे। अगले का डील डॉल, लंबा तगड़ा, चेयरमैन सर जैसी हाइट और तगड़ा और ज़्यादा, कोई लड़ने को तैयार नहीं। 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो गांव के सबसे बुजुर्ग अनुभवी वकील साहब हैं, उनसे इलाज पूछो 82 वर्ष के। अब फैजी साहब जैसे अनुभवी, तो बोले कोई नहीं, बहुत मुकदमे देखे हैं, बहुत अनुभव है, अभी निपटाता हूँ इसको। अखाड़े में गए, बोले पहलवान से मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, सर उम्र देखो 82 साल की। तो उन्होंने कहा, ऐसी कहा पहलवान ने, फिट हूं। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां कम बजाइए आपने इस बात पर। भाई मुकदमा निपटना चाहिए, समस्या निपटनी चाहिए, कुल मिला के टारगेट तो यही है। लड़कों ने हथियार डाल दिया तो अनुभवी इलाज ढूंढ के लाए, बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। उसने तिरछा होकर देखा तो एक बात और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकते। भाई ने पूरी बार की तरफ से समझा दिया। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। उनको घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके दफ्तर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। सर बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। समझ जाओ तो अंतिम श्रोता तक एक बार ताली मुझ तक आए ताकि मैं शुरू करूं। पहलवान बोला जी आपने अखाड़े में वादा करा था। तो साहब बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मारा। एक घटना और बता देता हूँ और बस छोटी सी एक कविता सुनाऊंगा। सबने बहुत कम समय लिया है, मुझे भी आपकी फ्लाइट पकड़वानी है। देखिए आनंद हर तरफ बिखरा हुआ है, थोड़ा सा साइकोलॉजी मनोविज्ञान की ज़रूरत है। अभी खत्री साहब ने बताया कि इतने बढ़िया सेक्रेटरी मुझे मिले हैं, सारे फैसले हम मिलकर करते हैं और एक परिवार है हमारा। अभी क्या हुआ, खत्री साहब और राजेश मिश्रा जी पिछले दिनों कहने लगे भाई कुंभ के मेले में घूम के आएंगे, गंगा में डुबकी लगानी है। दोनों भाई वहाँ चले गए। तो इन्होंने कहा यार आज कुछ मूड ऐसा है। खत्री साहब ने कहा कि राजेश पैसे भी खर्च नहीं करने और जलेबी भी खानी है कुंभ के मेले में। कर सकता है आदमी अनुभवी? मैं बताता हूँ। ये राजेश जी गए जलेबी वाले के पास, बोले 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने दे दी। पीछे साहब हमारे चेयरमैन सर पहुंच गए कि मुझे भी दे दे, उसने उन्हें भी दे दी। अब जलेबी वाला नहीं जानता, दोनों परिचित हैं। थोड़ी देर में मिश्रा जी ने कहा भी तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, तो इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मेरे 100 रुपये मत भूल जाना। जलेबी वाला बोला जी आपने तो 100 रुपये नहीं दिए, आपने कब दिए? तब तक खत्री जी बोले भी तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपये मत भूलना। तालियां बजा दीजिए। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है और ये आनंद का उत्सव है। एक स्वतंत्रता दिवस का उत्सव ये भी है जो सर ने कहा, चेतन जी ने, कि देश आगे बढ़ेगा मुस्कुराहट के साथ बढ़ेगा, मुंह लटका के आगे नहीं बढ़ेगा, उत्साह के साथ बढ़ना है। बोले साहब आपने भी नहीं दिए 500 रुपये, आपने कब दिए? फिर उसने सोचा सबके मना करूंगा तो बाकी जो दूसरे ग्राहक हैं ये कहेंगे भी सारे ग्राहक तो झूठ बोल नहीं सकते, तू ही झूठ बोल रहा है। तो उसने सोचा कम नुकसान पे मामला निपटाओ। मिश्रा जी की तरफ देखकर बोला जी याद आ गया आपने 100 रुपये दिए थे। फिर खत्री साहब की देखकर बोला जी आपने नहीं दिए 500 रुपये, बिल्कुल नहीं दिए। बात कसम धर्म पर आ गई तो इन्होंने जो कसम खाई उसके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए कि चेयरमैन ये काम भी करना जानता। इन्होंने कहा कि गंगा जी के घाट पर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहता हूं जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही मैंने भी दिए। तो जरा तालियां जोरदार बजा दीजिए। मैं थोड़ा सा 3 छंद सुनाता हूं, समय की सीमा है और इशारा वो करके गए हैं कि सब इस प्रतीक्षा में है कि आगे का कार्यक्रम चालू हो। एक छोटी सी अपने रंग की कविता सुनाता हूँ।
मेरा एक वृहद परिचय है। अमेरिका 10 बार गया, 25 किताबें लिखी, मेरी लिखी कविताएं राजस्थान में पाठ्यक्रम में भी पढ़ाई जाती हैं और बहुत माँ की कृपा है, माँ का बहुत आशीर्वाद है। एक छोटी सी कविता, मुझे लगता है कि जब सर की उपस्थिति है, न्यायमूर्ति बैठे हैं, तो सर एक छोटी सी कविता 1.5 मिनट की मैं आपकी उपस्थिति को भेंट करना चाहता हूँ। मेरे मित्र, मैंने सुना है जयपुर में हाई कोर्ट में, तो बाद में जज साहब आए, बोले यदि ये एक पंक्ति लोग जीवन में उतार लें तो 80% मुकदमे खत्म हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज सर की गरिमा में उपस्थिति है हमारे सुब्रमण्यम जी की और महाजन जी की। सर 1.5 मिनट की एक कविता मैं आपको भेंट करता हूँ। कोयल का रंग होता है काला, पूरा सदन का आशीर्वाद चाहूँगा। गांधी जी, चमन जी, एक अलग कविता सुनाता हूँ। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। तालियां चाहिए अगली पंक्ति पर सुनने के बाद। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। तालियां कम हैं आपकी, बात पहुंचे तो ज्यादा समर्थन आना चाहिए। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। चेतन जी की तालियों को प्रणाम करता हूं। और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। और 2 पंक्तियां जिस एहसास से मैंने कही हैं आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। सुब्रमण्यम सर, विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ, उसे स्वीकार करो मूल स्वभाव के साथ। ये 3 रंग का पटका पहना है। ये कहता हूँ कि 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है। देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। एक बार तालियां बजा दीजिए। 1.5 मिनट में बात खत्म। खत्री जी बस खत्म कर रहे। हिंदुस्तान क्या है, इसकी तासीर क्या है, ऐसा देश मैं आदरणीय चेतन जी के स्वर में स्वर मिलाता हूँ। धरती पर कोई नहीं है। 10 बार अमेरिका में जाकर कविताएं सुनाई। हिंदुस्तान क्या है, मेरे साथ तालियों की ताल के साथ सुन लें और उत्सव का समापन करें। ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है। यह है हिंदुस्तान। चले जाइए सीकर, झुंझुनू, हर घर में एक बेटा सरहद पर बंदूक लेकर खड़ा होता है और बाप मर जाता है तो माँ कहती है कोई बात नहीं, इसके बेटे को भी सरहद पर भेजूंगी। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे अगली शुरू नहीं करूंगा। हम शहीदों को याद कर रहे हैं। तिरंगा आपने फहराया है
तो जरा एक बार तालियों से प्रणाम कर लें। मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, ओ व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी मुझको दुकान। और अगली पंक्ति ठक से लगेगी तो उस एहसास को अपनी मोहब्बत में तब्दील कीजिएगा। खत्री साहब, वही बात कह रहा हूं जो आप सबने कही है कि व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी, किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है। खामियों के बावजूद भारत महान है। खामियों के बावजूद भारत। और एक महिला का पति जब तिरंगे में लिपटकर घर आया पुलवामा अटैक के बाद, तो उसने अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर अपने पति के सबको कांधा दिया। खत्री साहब, हरियाणा की घटना थी और जाति नहीं है परिवार की महिलाएं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं आज इसको कंधा देकर वही वस्त्र पहनूंगी जिनको पहनकर मैंने जयमाला डाली थी। मैंने नवभारत में वो चित्र देखा था, नवभारत टाइम्स अखबार में, और 8 पंक्तियां लिखी थी, मेरे दिल पर छपी, आपके दिल पर छापता हूँ, हिंदुस्तान क्या है। मेरी बहनें बैठी हैं, हिंदुस्तान की तासीर क्या है। दुनिया में कोई देश नहीं है जो देश को माँ कहता है। अमेरिका माता, जापान आंटी, ऑस्ट्रेलिया चाची नहीं सुना होगा आपने। हिंदुस्तान है जो कहता है माँ 3 है। एक वो माँ है जिसने जन्म दिया है, दूसरी माँ वो है जिसने शब्द का ज्ञान दिया सरस्वती, और तीसरी माँ वो है जिसकी गोदी में हम खेलते हैं। पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट नहीं है। तब कहता हूँ, फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गए। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गए। बहुत एहसास अगली 2 पंक्तियों पर दीजिएगा। पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर्जर हो गया। मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया। मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया मेरा। और अंतिम 4 पंक्तियां काव्य पाठ का समापन। अंतिम 4 पंक्तियां मैं भी विदा चाहूँगा और आप सबको बधाई देता हूँ। इस देश की तासीर क्या है, इन्हें तालियों की ताल के साथ सुन लें। और मेरा सौभाग्य कि सुब्रमण्यम जी को और मैं, हमारे महाजन जी को, उनको देश की धड़कन का एहसास, उन्होंने तो एक लाइन में बात कह दी कि वहाँ भी सुनना पड़ता है, वहाँ भी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आनंद की हैं मेरे पास, लेकिन आज अंतिम 4 पंक्तियाँ और एहसास के साथ मुझे विदा करें। भाव सुन लीजिएगा, नारी का एहसास क्या है। सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूँ शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी। तो तालियों की ताल मिला दें। तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया। खत्री जी कहते हैं ना हमारे हरियाणा में, जा तुझ पर वार फेर कर दी। तो वो कह रही है कि पति की तो मैंने वार फेर कर दी, कि पति को तो देश पर पहले ही वार दिया। सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। अंतिम पंक्ति तालियों की ताल से उत्सव का समापन करें, सुन लीजिए कि पति को तो देश पर पहले ही वार दिया। सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। 10-20। बहुत बहुत आपको स्वतंत्रता के पावन पर्व पर शुभकामनाएं। आदरणीय मिश्रा जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने प्रेम से मुझे आमंत्रित किया, और ये प्रेम यूं ही बार के माध्यम से सब तरफ फैलता है। मैं आपके चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रवीण शुक्ल जी का शॉल पहना के स्वागत करें। जैसा कि हमारे चेयरमैन सर को फ्लाइट लेनी है, समय कम है, तो हम समापन की तरफ चलते हैं।
मैं बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से, अपने सभी मेंबर्स बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से, हमारे मंच पे जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं सभी का पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए, हमें समय दिया। हमारे जितने मेंबर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के समय निकाल के आए, उन सभी का स्वागत है। आप सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से प्रार्थना है कि बाहर हमने लंच की व्यवस्था की है, प्लीज़ लंच करके जाएं।